बिल्कुल विशाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है। अर्बन कॉन्क्लेव कम एक्सपो लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप। लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और उत्तर प्रदेश शहरी विकास विभाग द्वारा आयोजित अर्बन कॉन्क्लेव कम एक्सपो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यू अर्बन इंडिया की थीम पर आधारित इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में उत्कृष्ट हाउसिंग तकनीक प्रदर्शनी का मुआयना करते हुए The new Urban India showcases the achievements and future projections of the transformative urban missions and is planned under Azadi at 75 celebrations. A big day for all of us because though it is being organized in UP, which also has the largest population of the country, but definitely it is going to benefit every last man in the queue. This exhibition highlights the achievements under flagship urban missions in the past 7 years of the Narendra Modi government. Abhishek? 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चलने वाले इस प्रदर्शनी में विश्व स्तरीय हाउसिंग तकनीकों को दर्शाया गया है, जिसमें केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान यानी CSIR रुड़की, सौर ऊर्जा, बैम्बू आधारित आवासों, फ्लाई ऐश आधारित मकानों जैसे कई तकनीकों को अलग अलग प्रदर्शनी के जरिए यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। कम लागत में और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार देश भर में अलग अलग जगहों पर किस तरह से आवासों, भवनों का निर्माण हो, उसकी उत्कृष्ट तकनीक को बयां करता ये प्रदर्शनी। Right, Abhishek. And this exhibition under Global Housing Technology Challenge India, an exhibition on 75 innovative construction technologies named India Housing Technology Mela is being organized. The exhibition will showcase domestically developed indigenous and innovative construction technologies, materials and processes which could be useful for the beneficiary-led construction. Abhishek, this is very important because it is not only indigenous, it is not only innovative, but it is also useful for the beneficiary-led construction. People who would be benefited under Pradhan Mantri Awas Yojana urban and other low and mid-rise houses. So it is not only about providing a house, simply giving them a structure, but also giving them a livable, an economical and a sustainable house. Abhishek? बिल्कुल विशाल, इस न्यू अर्बन इंडिया एक्सपो के अंदर सौर ऊर्जा का उपयोग भी किस तरह से भवनों, दफ्तरों, व्यावसायिक केंद्रों में किया जाए, ये भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जल्द से जल्द निर्माण कार्य के तकनीकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते हुए, चाहे वो औद्योगिक बिल्डिंग्स हों, कोल्ड स्टोरेज हों, उनके नवीनतम तकनीक, नए एयरपोर्ट के निर्माण, औद्योगिक, आवासीय, व्यावसायिक या फिर किसी संस्थान के निर्माण का तकनीक, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के निर्माण की तकनीक को इस एग्जीबिशन में दर्शाया गया है। तकरीबन 110 नए तरह के हाउसिंग टेक्नोलॉजी को यहाँ पर इस प्रदर्शनी के अंदर दिखाया जा रहा है। Right, Abhishek, and it has been the vision of the Prime Minister, Housing for All by 2022, and this 3-day conclave would set the future course of the action because Prime Minister believes in continuous process, evolving, transforming, has always been his vision. He has been focusing on the local ideas, and that is why Prime Minister is always vocal for local, whether it is technology,
whether it is raw material, whether it is an idea. And when it comes to providing a house for every needy, it has to have all the facilities, not only a structure, but a house which has an LPG connection, which has tap water connection, which has a living standard. And this is what the Prime Minister would be doing today, going through the exhibition, followed by the Chief Minister, Governor, they are accompanying him, and also you can see the Urban Affairs Minister and also Secretary Urban Affairs. They are all accompanying the Prime Minister as he takes a view of the exhibition. This would certainly set a new benchmark, as it is said, new urban India. Abhishek, a lot of people, they migrate from villages to metros, and to provide them a better living, a good standard living, has been the idea of the Narendra Modi government. And in this 3-day conclave, it is being showcased as to how the flagship schemes of the government is reaching out to the people, is benefiting the people, people who are needy and who have no connection. बिल्कुल विशाल, आत्मनिर्भर होते नए भारत के निर्माण में शहरों का विकास बहुत ही ज़रूरी है, और ऐसे में इस कॉन्क्लेव के जरिए शहरों के विकास को यहाँ पर दिखाया गया है। पिछले कुछ वर्षों के अंदर जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरों के विकास को लेकर जो प्राथमिकता दी है सरकार ने, उसे यहाँ पर इस प्रदर्शनी के अंदर दिखाया गया है। साथ ही जो अलग अलग राज्य हैं, चाहे असम हो, उत्तर पूर्व के राज्य हो या फिर कोस्टल एरियाज़ हैं, वहाँ पे भवनों का निर्माण किस तरीके से किया जाए, उसको लेकर के नए तकनीकों को यहाँ पर बारीकी से इस एक्सपो के अंदर समझा जा सकता है। PM Swanidhi, one of the flagship schemes of the Modi government, providing all the resources, providing all the help. Corona has been quite a disaster, not only for India but also for the world. But as the Prime Minister has always been a Karm Yogi, he has always believed that you can have a positive attitude, and a positive attitude will get you better ideas even in a disaster like COVID. And that is why India has successfully fought and won 2 waves of COVID, and now India is on the success path to progress. The flagship schemes of the government very much aimed at benefiting the poor man. Also seen is the Defence Minister Rajnath Singh ji accompanying the Prime Minister. On his right is the Urban Affairs Minister. The Prime Minister taking keen interest. He is a very good listener, and he wants people to come up with new ideas, and he also wants and he also makes sure that the ideas are implemented. The man who walks the talk is Prime Minister Narendra Modi. पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इनके आधुनिकीकरण और विकास पर विशेष जोर रहा है। स्मार्ट सिटी हो या फिर आधारभूत ढांचा, इसको सुदृढ़ करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा प्राथमिकता दी है। इस अर्बन कॉन्क्लेव में सभी राज्यों के शहरी विकास मंत्रियों के साथ साथ शासन के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया है, ताकि इन उत्कृष्ट आवासीय तकनीकों को वो भी समझ सके और सभी प्रदेशों को इसका लाभ हो सके। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान, असम, पूर्वोत्तर के राज्य हो, गुजरात या इसके अलावा देश के अलग अलग राज्य, वहाँ के लोगों को, वहाँ के शासन के अधिकारियों को, वहाँ के शहरी विकास मंत्रियों को
इसका लाभ हो, यहाँ पे वो इसको बारीकी से समझ सके और अपने प्रदेश को लाभ पहुँचा सके, इसलिए सभी यहाँ पर एक्सपो में ज़्यादातर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। Azadi Ka Amrit Mahotsav. The exhibition showcases the achievements so far under various flagship urban missions of the Ministry of Health and Urban Affairs, such as Swachh Bharat Mission Urban, Pradhan Mantri Awas Yojana Urban, Deen Dayal Antyodaya Yojana National Urban Livelihoods Mission, Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation, Smart Cities Mission, and Urban Transport. The theme of the exhibits are Clean Urban India, Water Secure Cities, Houses for All, New Construction Technologies, Smart City Development, Sustainable Mobility, Cities Promoting Livelihood Opportunities. This is what is the mission of the Modi government, not just providing a house, but providing a house with all the facilities. And when we talk about mobility, today the Prime Minister would also be inaugurating the zero emission buses facility for Uttar Pradesh. Along with that, he would also be virtually handing over the keys to 75,000 beneficiaries. Yes, he would be interacting with some of them, but providing houses to 75,000, I beg your pardon, 75,000 beneficiaries is quite an achievement. Isn't it, Abhishek? बिल्कुल, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन और इसके सफल क्रियान्वयन को इस एक्सपो के जरिए प्रदर्शित किया गया है। शहरों में नागरिकों के लिए बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को प्रदर्शित किया गया है। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य साफ है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग और अल्प आय वर्ग के आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराना, उनके चेहरे पर मुस्कान लाना। Well, certainly it would bring a smile because this is transforming the landscapes of urban India, new urban India. New is the word, new is the theme, and we all feel so proud to be part of this August gathering, of this August occasion. Uttar Pradesh has had a lot of problems because of the huge population, and housing has been one of them. Waste management is another. Providing potable, clean drinking water is also one of the crucial issues, and all have been taken care of. And that is what is being showcased here. How to utilize the resources, how to utilize the energy, how to bring down the pollution, how to create wealth from waste has been the focus of Prime Minister Narendra Modi. There are two pandals here. One is the Indian Assembly, and the other one is based on the developments of UP. I beg your pardon, it is the Indian Pavilion, not the Assembly. And the other one is the development that UP has achieved and also shown to the world. The other day when I and you were interviewing the Urban Affairs Minister, Hardeep Singh Puri, he was proud enough to share that UP is on the number 2 position in achieving the household facilities for the common man. Now that's a huge achievement, Abhishek. बिल्कुल, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्वयं सहायता समूह का गठन हो या फिर युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार से लाभान्वित करना, ये पिछले कुछ वर्षों में मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहरों के आधुनिकीकरण, बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, विश्व स्तरीय परिवेश, आत्मनिर्भर होते नए भारत की तस्वीरों को बयां कर रहा है। And there you see Prime Minister
Transportation plays a key role when it comes to the achievement of a smart city project, and this is what has been showcased here. Prime Minister very बिल्कुल। तो इस वक्त ये सीधे दृश्य आप लखनऊ से देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुआयना कर रहे हैं विभिन्न स्टॉल्स जो वहां पर लगाए गए हैं। काफी महत्वपूर्ण दिन उत्तर प्रदेश के लिए ये है, और उत्तर प्रदेश की अगर विकास यात्रा की अगर हम बात करें तो उसके लिए भी काफी महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री यहां पर आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 75,000 लोगों को यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित चाबियां प्रदान करेंगे, और उसके अलावा 75 इलेक्ट्रिक बसेस का भी यहां पर प्रधानमंत्री उनको लॉन्च करेंगे। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि वहां पर जो विभिन्न पंडाल, विभिन्न विभागों के पंडाल और उसके अलावा गैर सरकारी संस्थानों के जो पंडाल वहां पर लगे हुए हैं, उन पंडाल को इस वक्त प्रधानमंत्री वहां पर मुआयना कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी से जुड़ा हुआ ये पंडाल है जिसका इस वक्त प्रधानमंत्री मुआयना कर रहे हैं। और अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की हम बात करें, शहरी और ग्रामीण की, और खासकर ये जो कार्यक्रम है ये प्रधानमंत्री आवास मिशन शहरी से जुड़ा हुआ है। अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, इस वक्त हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री विभिन्न जो प्रदर्शनी वहां पर लगी हुई हैं उनका मुआयना कर रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण दिन आज उत्तर प्रदेश के लिए है ये? बिल्कुल चंद्रशेखर, देखिए जिस तरीके से लखनऊ के अंदर इस अर्बन कॉन्क्लेव की शुरुआत की गई है, खास तौर पे आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पे अमृत महोत्सव के अंतर्गत, ये काफी इसका जो फायदा है आने वाले समय में न सिर्फ उत्तर प्रदेश को मिलेगा बल्कि पूरे देश को इसका फायदा होगा। यहाँ पर प्रधानमंत्री न्यू अर्बन टेक्नोलॉजी के जो नए तकनीक है उनको यहाँ पर देख रहे हैं। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं, और खास तौर पर यहाँ पर 110 तरह के जो नए टेक्नोलॉजी है भवनों के निर्माण के लिए, आवासीय जो जगह है उनके निर्माण के लिए, आवासीय घरों के लिए, इसके साथ साथ कमर्शियल बिल्डिंग के लिए जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनता है उनके लिए, इन सभी को किस तरीके से नए टेक्नोलॉजी के जरिए बनाया जा सके, कम समय में बनाया जा सके, कम लागत में बनाया जा सके, और सबसे बड़ी बात कि जल्द से जल्द इसे पूरा किया जा सके। इसको लेकर ये सारी टेक्नोलॉजी है। और अलग अलग जगहों पर अगर हम बात करें, पूर्वोत्तर की भौगोलिक स्थिति अलग है, तो वहां पर किस तरीके से जो है वहां के आवास की क्या संरचना होगी उसको लेकर के एक अलग टेक्नोलॉजी है। उसको लेकर कई सरकारी और जो निजी यहाँ पे एग्जीबिटर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी प्रदर्शनी लगाई है। साथ ही साथ अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर आप बाढ़ग्रस्त इलाके जो है वहां पर किस तरीके के घरों का निर्माण हो, उस टेक्नोलॉजी में दिखाया गया है कि ऐसे घर जो बाढ़ जिनपे कम से कम नुकसान पहुंचा सके या इस ऐसे क्षेत्रों को। तो खास तौर पर जो नई टेक्नोलॉजी है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 75 जिलों के अंदर 10 स्मार्ट सिटी बनाए जा रहे हैं। और ऐसे में जो शहरों का विकास है वो बहुत जरूरी है। खास तौर पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उनका लाभ जो है वो लोगों तक पहुंचे, जो घर घर जल योजना है उसका लाभ लोगों तक पहुंचे, जो बुनियादी सुविधाएं हैं जो वर्षों से लोग मरहूम थे विगत पिछले कुछ वर्षों के अंदर, उसका फायदा लोगों को अब दिखने लगा है। वो लोग देख पा रहे हैं जिनके घर में कभी पानी की सप्लाई नहीं थी, जहां बिजली कभी दुर्गम इलाकों होने के कारण या फिर शहरों में भी कई लोगों के पास बिजली नहीं थी, वहां पर पिछले कुछ सालों के अंदर हर घर के अंदर बिजली पहुंचाई गई है, जल का कनेक्शन दिया गया है, अब उनके घर में नल है और लोगों के चेहरे पर मुस्कान साफ साफ दिखता है। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था किस तरीके से हो शहरीकरण के बाद, क्योंकि धीरे धीरे जो ग्रामीण आबादी है वो शहरों की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो ऐसे में शहरों पे जो है अतिरिक्त दबाव बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में शहरों का
में ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कितनी दुरुस्त हो, इस पर भी काफी फोकस किया गया है इस कॉन्क्लेव के अंदर, एक्सपो के अंदर। और इसी के मद्देनजर जो है पर्यावरण हितैषी बस, इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत भी आज प्रधानमंत्री करेंगे। तकरीबन यूपी में 75 जिले हैं और 75 बस जो है इलेक्ट्रिक बस, उसको प्रधानमंत्री डिजिटल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ ही साथ ये जो बस है ये फिलहाल अभी यूपी के 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो रवाना होंगी और धीरे धीरे इनका विस्तार किया जाएगा। इसके साथ साथ मेट्रो जो शहर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का एक बड़ा माध्यम है, मेट्रो रेल सेवा, जिसको लेकर के यहाँ पर इस प्रदर्शनी में उसे भी दर्शाया गया है कि किस तरीके से लखनऊ के बाद और जो शहर है उत्तर प्रदेश, वहां पर मेट्रो का विस्तार हो सके, मेट्रो का जाल बिछ सके, ताकि लोगों का समय बचे, कम खर्च में लोग जो है शहरों के अंदर एक जगह से दूसरे जगह तक आवागमन कर सके। इसके साथ साथ कई सारी और भी योजनाएं हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर एयरपोर्ट बनाने को लेकर के, उसको लेकर के भी काफी कुछ जो है उड़ान योजना के अंतर्गत उस पे काफी उसके विकास को भी लेकर काम चल रहा है। बिल्कुल अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि प्रधानमंत्री इस वक्त लखनऊ में हैं। वहां पर वो एक प्रदर्शनी का दौरा कर रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में वहां पर ये प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और इस दौरान इसके बाद एक कॉन्क्लेव भी वहां पर होनी है और प्रधानमंत्री 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को, जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थी हैं, उनको डिजिटल माध्यम से चाबी सौंपेंगे। 5 लाभार्थियों से संवाद भी प्रधानमंत्री करेंगे और साथ ही साथ स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 10 स्मार्ट सिटी की 75 सफल कहानियों की कॉफी टेबल बुक का भी यहां पर विमोचन किया जाएगा। और साथ ही साथ हम दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, गाजियाबाद और वाराणसी के लिए 75 स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर भी यहां पर रवाना करेंगे। और ये प्रदर्शनी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार की जितनी योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे स्वच्छ भारत की हम बात करें, अमृत मिशन की हम बात करें, या उसके अलावा घर घर जल पहुंचाने के लिए जो विभिन्न तरह के कार्यक्रम हैं, किस तरह से सारे के सारे कार्यक्रम जब एक साथ आ जाते हैं और साथ ही साथ राज्य सरकार की जो मशीनरी है वो उनको काफी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करती है, तो किस तरह के उदाहरण, किस तरह के परिणाम सामने आते हैं वो यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अभिषेक, आप हमारे साथ बने हुए हैं? ठीक है अभिषेक, अभी आइए सीधे हम लखनऊ। प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी मौजूद हैं। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी that is being promoted so that it benefits the needs of the beneficiary. It is linked to the beneficiary needs, and so it is so very important that this exhibition tells the world how innovative technology, which is not borrowed, which is not foreign, but indigenous. You can see Prime Minister going through the exhibition hall, the Indian Pavilion, exhibitors from all over the country participating from Meghalaya in the northeast. As you can see, Prime Minister going through a model of a house built of bamboo, how bamboo can play a major role in the economy of the northeast, and how the technology can also be used in other parts of the country. Prime Minister going through different exhibits, and those participating describing their product and how they can make a difference in New India. Abhishek? बिल्कुल नए भारत के सपने को साकार करता ये एग्जीबिशन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नए तकनीक को, हाउसिंग तकनीक को देखते हुए तकरीबन 110 नए तकनीकों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। देश विदेश की कई ऐसी तकनीकें जिनसे भवन निर्माण का कार्य सरल हो, सुगम हो और सस्ता हो, उसको यहाँ बारीकी से समझाया गया है। शहरों के अंदर किस तरीके की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था हो, मेट्रो की व्यवस्था हो, रिहायशी इलाकों में, कमर्शियल इलाकों में, औद्योगिक क्षेत्रों में किस तरीके से मास्टर प्लान तैयार किया जाए, उसको लेकर के इस प्रदर्शनी में काफ़ी कुछ देखा जा सकता है। Well, absolutely, Abhishek, very rightly put in, because it is not only about technology. Of course, it has to be indigenous and innovative, but at the same time, a low-cost technology, because a lot of efforts go into building a house, and cost becomes a major challenge. So, a low-cost house, which is having all the standards, the green standards, so that it does not pollute the environment, and at the same time whatever waste is generated, that waste is also transformed into wealth. That is what has been the vision of the Prime Minister. Nothing goes waste. And India, which has been the signatory of the Paris Agreement, and the world acknowledges Indian effort. Recently, when the Prime Minister was there in USA to meet President Biden, he also acknowledged and praised the efforts made by India as far as controlling pollution is concerned under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. Abhishek? बिल्कुल विशाल, पिछले कुछ वर्षों के अंदर जो बदलाव आए हैं पूरे देश के अंदर, अगर मैं उसकी बात करूं तो कई सुगम दुर्गम इलाके ऐसे भी हैं जहां पर जब हम जाते थे तो वहां के लोग कहते थे कि उन्हें मोबाइल चार्ज करने के लिए किसी दुकान में जाना पड़ता है, उनके घर में लाइट नहीं होती थी। अब पिछले कुछ वर्षों के अंदर सभी दुर्गम इलाके हो, शहर हो या फिर ग्रामीण इलाके, वहाँ पे बिजली की आपूर्ति की गई है, बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। और अब चेहरे पे लोगों का मुस्कान है, वो ये कहते हैं कि पिछले 2-5 वर्षों के अंदर अब उन्हें मोबाइल चार्ज करने के लिए अपने घर से दूर नहीं जाना पड़ता। अब उनके घर में भी बिजली है और वो खुश हैं, बच्चे अब रात में भी पढ़ सकते हैं। काफ़ी बदलाव जो है वो पिछले कुछ वर्षों के अंदर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। Yes, Abhishek, and this is all about transforming the landscapes of urban India. That is why it is said new urban India. India has been an urban country as well, though it is said that India resides in villages, but over the years the urban area has also made progress. But the vision of the Prime Minister is new urban India, an India which has house for every person who migrates or walks in for his livelihood, a house which is designed at a low cost, which is designed on indigenous technology, which is designed with innovative ideas and which is cost effective as well. Abhishek? बिल्कुल विशाल, और अब न्यू हाउसिंग टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन से प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश शहरी विकास विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी की ओर जाते हुए प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी मौजूद हैं। आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में न्यू अर्बन इंडिया की थीम पर आधारित इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी। Well, Abhishek, on this occasion, two films titled MOHUA's Urban Missions Achievements So Far and Uttar Pradesh Emerging as Land of Urban Opportunities will also be released by Honorable Prime Minister. Notably, he will also hand over keys of Prime Minister Awas Yojana urban houses to 75,000 beneficiaries in 75 districts of UP virtually, while his virtual interaction with beneficiaries at 3 sites in UP has also been scheduled. So shortly we would also show you Prime Minister interacting virtually with some of the selected beneficiaries. This will be followed by release of a coffee table book which will capture 75 projects implemented under various flagship missions of the Ministry of Housing and Urban Affairs. An inauguration foundation of 75 urban development projects of UP under SCM and Amrut. Abhishek? बिल्कुल विशाल, पिछले कुछ वर्षों के अंदर अगर हम केंद्र की योजनाओं की बात करें तो चाहे वो जल जीवन मिशन हो, हर घर जल योजना हो, इसका जो फायदा है न सिर्फ शहरों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में, दुर्गम पहाड़ी इलाकों में भी देखने को मिला है। कई ऐसे राज्य हैं जहां तक पहुंचना मुश्किल, वहाँ के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, लेकिन वहाँ भी बिजली हो, पानी है या फिर गैस का कनेक्शन है उज्ज्वला योजना के तहत, वो वहाँ पर पिछले कुछ वर्षों के अंदर सरकार ने उपलब्ध कराई है। Well, absolutely. And as we were talking about how transportation has always been a major challenge in the urban areas, catering to the ever-growing population, Prime Minister Narendra Modi will flag off 100 buses under FAME 2 for 7 cities such as Lucknow, Kanpur, Varanasi, Prayagraj, Gorakhpur, Jhansi and Ghaziabad. And let us inform our viewers that these buses are zero emission buses. So no need to worry about pollution. And this is what a livable standard is all about, where you have a clean environment also for your children, for the coming generations. Abhishek? बिल्कुल पर्यावरण हितैषी होने के साथ साथ इन इलेक्ट्रिक बसों की जो का मेंटेनेंस भी जो है वो भी काफ़ी कम है और साथ साथ ये काफ़ी इको फ्रेंडली है। और इसके साथ साथ जिस पर जो खास फोकस रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो है स्वच्छ भारत मिशन पर। और इस पूरे एग्जीबिशन के अंदर भी स्वच्छ भारत मिशन का एक अलग स्टॉल लगाया गया है, जिसमें कि शहरों में स्वच्छता को काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है कि एक स्मार्ट सिटी हो, बड़े या छोटे शहर हो, अगर उनका विकास होना है तो स्वच्छता को प्रमुखता से अपनाया जाए, लोग आसपास भी स्वच्छ रखें और स्वच्छता का के लिए जागरूकता अभियान भी चलाते रहें। Well, absolutely. And though it is being organized in the capital city of Uttar Pradesh, but other states and union territories are also participating in Azadi at 75, New Urban India, Transforming Urban Landscape Conference cum Expo. It will help in experiencing, sharing, commitment and direction for further action as India celebrates 75 years of independence in 2022, which is happening next year, Abhishek, and we are all very proud to be part of this grand celebration, 75 years, and India and we as independent Indians have successfully fought our forefathers, our leaders, Mahatma Gandhi, under whose leadership country gained freedom from the British Raj, and now is the time to celebrate the 75th anniversary of independence under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. And there you see Prime Minister. नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, बदला नगरीय परिवेश पर आधारित उत्तर प्रदेश का पवेलियन, जहां प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। इस पवेलियन में राज्य में चल रहे विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को
प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया है। After 2017, Uttar Pradesh has emerged as promoter of urban landscape to ensure livability, economic ability and sustainability. This exhibition showcases performance of UP under flagship urban missions and future projections as UP at 75 themed, transforming urban landscape in Uttar Pradesh. What a moment for the people of Uttar Pradesh. Prime Minister going through every detail. Now this part is the effort of the self-help groups and the products made by the self-help groups put on display, how they are helping and providing all the economic support, financial support to our women, to our cottage industry. Prime Minister slowly but very engaged walking through the exhibition, accompanied by the Chief Minister, Governor of Uttar Pradesh, the Defence Minister and also the Minister for Urban Affairs. Abhishek? बिल्कुल, इस पवेलियन में उत्तर प्रदेश शहरी विकास विभाग द्वारा 25 प्रदर्शनी लगाए गए हैं, जिसमें स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत मिशन, अर्बन ट्रांसपोर्ट, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, मेट्रो, शहरी आवास योजना को प्रदर्शित किया गया है। एक जनपद एक उत्पाद. This is the focus of this exhibit as the Prime Minister slowly walking through the exhibition. Also shown here is household connections in the state, 60 towns of UP, how they have been very carefully given the tap water connection, neat, clean drinking water. Quite a challenge, but achieved under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, who also represents the state from Varanasi in the parliament. And definitely kudos to the Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath. Abhishek? स्टेट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी सुडा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिसका मकसद स्ट्रीट वेंडर्स का सामान खरीदारों के डोर स्टेप तक पहुंचे, उसे भी उत्तर प्रदेश के इस पवेलियन में प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ ही साथ जो भी लोकल जगह है वहाँ पर किस तरीके से वहाँ के जो आर्ट एंड क्राफ्ट हो उनको कैसे प्रमोट किया जाए, उसे कैसे मंच पे पहुँच दिया जाए, उसको लेकर के भी एक प्रदर्शनी लगाई गई है। जो भी पारंपरिक कला है, जो भी कलाकार हैं, उनको कैसे मंच प्रदान किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में, पिछले 4.5 वर्षों में जो भी डेवलपमेंट हुआ है उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से उसको इस प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ पर दिखाया जा रहा है। Well, absolutely. Chief Minister of Uttar Pradesh would be very proud as he showcases his achievement since 2017. The vision of Prime Minister Narendra Modi, the blueprint provided by Prime Minister Narendra Modi has been executed and executed for the good of the people. Prime Minister Narendra Modi has always been a man who walks his talk, simply promising people for benefits of votes. He does not believe in that. He believes in serving the people. And that is all has been displayed. And there you see the model of Ram Temple. It is not only about Ram Temple, Ram Mandir, but the whole area is to be developed, and the blueprint has been showcased here. The spiritual tourism would be connected to airports, would be connected to commercial activities, and that is what
has been the vision and mission of Prime Minister. Every step, every decision that he makes is definitely for the good of the people, but also has far-reaching impact, not only in the country, but also for the future generations. So every penny is made, every penny counts. This is what the Prime Minister believes, and every penny is for the good of the people, and that is what the execution is all about. And there you see Prime Minister having a view, inspecting the Ram Temple blueprint. Abhishek? बिल्कुल राम नगरी अयोध्या के मास्टर प्लान को प्रधानमंत्री देखते हुए इस हॉल के सेंटर में ये मास्टर प्लान को यहाँ पर दर्शाया गया है। आने वाले समय में ये उम्मीद की जा रही है कि अयोध्या में प्रति वर्ष 1 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु पहुँचेंगे। ऐसे में अयोध्या शहर का विकास किस तरीके से हो, वहाँ पर बुनियादी सुविधाओं का विकास कैसे हो, वहाँ पे ठहरने की कैसी व्यवस्था हो श्रद्धालुओं के लिए, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर क्या मास्टर प्लान है, इस पूरे क्षेत्र को कैसे असल रूप दिया जाए, इसकी जानकारी इस प्रदर्शन के माध्यम से दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री इस पूरे मास्टर प्लान को देखते हुए Very keenly observing the Prime Minister, observing the master plan that has been laid down here, the blueprint that would be executed in days to come. It is not only about the people who would be coming here, but the facility that would be provided to them. Prime Minister taking a walk, escorted by Chief Minister UP Yogi Adityanath, and here you can see how to develop wealth from waste. The plant is situated in Prayagraj, and the project manager apprising the Prime Minister about the project, how the building materials and the raw material, the resources are being put to good use. Everything that comes out is not allowed to pollute the environment, but is recycled and is put to other use. Abhishek? बिल्कुल इस वेस्ट मैनेजमेंट के अलावा शहरों में सीवर लाइन परियोजना लगातार किस तरीके से उसको लेकर काम चल रहा है, लगातार शहरों में बढ़ रहे आबादी को लेकर जो दबाव है, उसके बाद क्या तकनीक अपनाया जाए ताकि शहरों का विकास भी हो सके और लोगों तक सुविधाएं भी पहुंच सके, इसको लेकर के इस एक्सपो में काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है। अर्बन ट्रांसपोर्ट हो, इलेक्ट्रिक बस हो, मेट्रो हो, साथ साथ पर्यावरण हितैषी भी हो और भविष्य का परिवहन भी हो, इसको लेकर उत्तर प्रदेश के इस एग्जीबिशन हॉल में खास प्रदर्शनी लगाई गई है कि किस तरीके से पिछले कुछ वर्षों के अंदर बड़ा बदलाव हुआ है, काफ़ी विकास हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर। Urban Affairs Minister, you can see on the screen, cleaner, livelier, smarter. That is the mission of Azadi at 75, the mission of Urban Affairs Ministry. The Prime Minister, having inspected both the pavilions, would be shortly reaching the main conference hall, where he would be virtually handing over the keys. But before reaching the conference hall, the Prime Minister would also inspect the model of the PM Awas.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बने हैं उसका मॉडल देखते हुए यहाँ पर किस तरीके की से इन घरों का निर्माण किया गया है, क्या सुविधाएं इसके अंदर दी गई हैं, इसका अवलोकन करते हुए आज प्रधानमंत्री 75,000 लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से ऐसे आवास की चाबी सौंपेंगे। कई लोगों के चेहरे पर आज मुस्कान दिखेगी और प्रधानमंत्री खुद से मुआयना करते हुए कि किस तरीके से इसका निर्माण किया गया है, किस तरीके की सुविधाएं अंदर दी गई हैं, उनका मुआयना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। Do you see the model of the house which has been built by UP Housing and Urban Planning Department? New Urban India is the theme. It is built with innovative ideas, with indigenous technology. Prime Minister coming out of the model of the house, quite satisfied with the development that has taken place under CM Yogi Adityanath in UP. और अब प्रधानमंत्री सेंट्रल हॉल की ओर जाते हुए जहां पर वो कई उत्तर प्रदेश को विकास की कई सौगात सौंपेंगे, साथ ही तकरीबन 4,737 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे या लोकार्पण करेंगे। Dignitaries and officials along with the people of Uttar Pradesh anxiously waiting to welcome Prime Minister Narendra Modi in the conference hall. It has been a very big day for Uttar Pradesh, a historic day rather, Abhishek, as UP, which is now proud to showcase how it is transforming rather, the landscapes of urban sector. बिल्कुल विशाल, आज उत्तर प्रदेश गवाह बन रहा है न सिर्फ लखनऊ में बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए कि किस तरीके से अब शहरों के विकास को गति मिलेगी इस कॉन्क्लेव के द्वारा। और प्रधानमंत्री अब सेंट्रल हॉल में सभी अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया अपना मोबाइल स्विच ऑफ पर रखें, कोई फोटोग्राफ्स ना लें और मास्क कृपा करके पहने रहें। आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 4.5 वर्षों में This is the time for the people, especially in UP, who have been waiting for a very long time to get a livable, economical and sustainable house for themselves. As you can see, everybody sitting, waiting for the Prime Minister to take on the stage. बिल्कुल विशाल, पिछले अगर कोरोना महामारी के अंदर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से यहाँ पर कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो किया और जिस तरीके से लोगों को जागरूक किया, जिस तरीके के प्रबंध किए गए, उसकी काफ़ी सराहना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किया गया। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको लेकर के राज्य के लगभग हर जिले में जो है उसे उपलब्ध कराई गई, अतिरिक्त बेड लगाए गए और जिस तरीके से कोरोना पर नियंत्रण पाया गया उत्तर प्रदेश में, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की काफ़ी सराहना की गई। और अब उत्तर प्रदेश फिर से
शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की नई कहानी लिखने को बेताब। Well, absolutely, Uttar Pradesh is ready to write a new history. It's a new dawn with Uttar Pradesh touching new horizons. Prime Minister awaited on the stage. Other dignitaries all seated, awaiting the benign presence of the Prime Minister Narendra Modi. So you can see ministers from UP, the Deputy Chief Minister, Mahendranath Pandey, Central Minister, Keshav Prasad Maurya, the Deputy Chief Minister, and also the Minister of Urban Affairs for UP, along with Chief Minister Yogi Adityanath. Sitting is the Union Minister for Urban Affairs. Abhishek, when it comes to UP, we have all heard stories as to how difficult it is to achieve roti, kapda and makan. And there you see everybody standing up, Prime Minister taking on the stage to welcome the Prime Minister. के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप थीम पर आयोजित इस महोत्सव में देश के महानायक एवं नए भारत के विकास पुरुष परम श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री जी, मंचासीन आदरणीय माननीय राज्यपाल महोदया, मंचस्थ आदरणीय माननीय रक्षा मंत्री जी, मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री जी, मंचासीन सभी सम्मानित मंत्रीगणों, उत्तर प्रदेश व 10 से अधिक अन्य प्रदेशों से आए हुए हमारे सम्मानित माननीय मंत्रीगण, मेयर्स, स्टूडेंट्स और सभी का स्वागत करता हूं। अतिथि देवो भव, इस भारतीय परंपरा के क्रम में मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रतीक चिन्ह देने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। धन्यवाद। अब कार्यक्रम के आरंभ में मैं श्री हरदीप सिंह पुरी जी, माननीय मंत्री आवासन एवं शहरी कार्य, भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि कृपया स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें। माननीय मंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी महेंद्र पांडे जी, कौशल किशोर जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री दिनेश शर्मा जी, भारत के विभिन्न राज्यों से के सभी सम्मानित मंत्रियों के साथ साथ आज यहां उपस्थित डिग्नेटरीज और आजादी 75 कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो में आप सभी का स्वागत। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में शुरू किए गए नेशनल अर्बन मिशंस ने देश में शहरों को बुनियादी रूप से बदल दिया है। 1947 में आजादी के समय हमारे शहरों की आबादी करीब 6 करोड़ थी। 2030 में ये 60 करोड़ आबादी होने जा रही है।
2030 तक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए और पूरी तरह से आत्मनिर्भरता में सफल रहने के लिए मुझे विश्वास है कि हमारी और आपकी जो शुरू की गई केंद्रीय योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटीज मिशन, अमृत, ये देश के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और आगे बढ़ते भी निभाएंगी। 2004 और 2014 के बीच केंद्रीय योजनाओं पर 10 साल में करीब 1,57,00,000 अर्बन इन्वेस्टमेंट की गई थी। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी जो केंद्रीय योजनाएं हैं जो जून 2015 में आरंभ हुई, सो 6 वर्ष में 2015 से लेकर 2021 तक ये अर्बन इन्वेस्टमेंट 7 गुना से ज्यादा हो गई है और आज 11,83,00,000 की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने शहरी गरीबों को सम्मान प्रदान करने के लिए 1,13,00,000 से अधिक घर सैंक्शन किए। वहीं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन ने 73 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण किया और स्वच्छता के प्रति प्रत्येक नागरिक के व्यवहार में बदलाव लाया। अमृत मिशन ने हमारे शहरी नागरिकों के लिए 500 शहर, जिनकी उनमें 1,10,00,000 टैप वाटर कनेक्शंस दिए और 85 लाख सीवर कनेक्शंस प्रदान किए। वहीं स्मार्ट सिटीज मिशन ने शहरी जीवन को सुगमता को फिर से परिभाषित किया। इन मिशंस के माध्यम से हमने महिलाओं और समाज के मार्जिनलाइज वर्गों को सशक्त बनाया है। मुझे यह कहकर गर्व महसूस हो रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत अधिकांश घर महिलाओं के नाम पर है। पिछले हफ्ते माननीय प्रधानमंत्री जी ने अर्बन लोकल बॉडीज में पानी और स्वच्छता की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए SBM 2.0 और अमृत 2.0 की शुरुआत की। SBM 2.0 में 1,41,000 करोड़ के आउटले और अमृत 2.0 में 2,87,000 करोड़ के आउटले है। शहरी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए मैं यहां मौजूद प्रत्येक राज्य सरकार के जो मंत्री और बाकी रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये सभी मिशंस देश के अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन में एक इंटीग्रेटेड दृष्टिकोण का प्रदर्शन करते हैं। उत्तर प्रदेश आपकी दूरदर्शिता के फल का जीता जागता उदाहरण है। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का आपको उदाहरण देना चाहता हूं। माननीय योगी जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले अगर 17-20 महीने का समय ले लें, जून 2015 से लेकर, तो केवल 20,000 आवास की डिमांड हम जनरेट कर पाए थे और योगी जी के आते ही अगले 17-20 महीने में ये 20,000 का जो आंकड़ा है ये 20 लाख बन गया। इस समय उत्तर प्रदेश में लगभग 11 लाख घरों को सैंक्शन करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ने 17.3 लाख आवास सैंक्शन कर दिए हैं, जिसमें 8.8 लाख लाभार्थियों को मिल भी चुके हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आप आज कुछ और लोगों को, उनकी लाभार्थियों को ये दे पाएंगे। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए
बहुत बदलाव लाया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लखनऊ और कानपुर के जो लोन की संख्या है वो दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद से बड़े शहरों से भी अधिक हो चुकी है। हाल में हमने हमारी मंत्रालय से एक इंडियन स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स 2020 के जब अनाउंसमेंट की तो उत्तर प्रदेश बेस्ट स्टेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्बन मोबिलिटी में इस समय उत्तर प्रदेश में 82 किलोमीटर मेट्रो रेल चल रही है, जिसमें 67 किलोमीटर योगी जी ने आने के बाद ऑपरेशनल की है। और इस समय जोरों से काम 131 किलोमीटर पे चल रहा है, जिसमें 82 किलोमीटर की दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जून 2025 तक तैयार हो जाएगी। एयर कनेक्टिविटी एक और क्षेत्र है जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। 2014 में से पहले और 2014 तक राज्य में केवल 4 एयरपोर्ट्स थे, जिनमें से केवल 2 नियमित थे। योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से आज राज्य में 8 एयरपोर्ट पूरी तरह से ऑपरेशनल है और कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिल्कुल तैयार है और मैं समझता हूं उसका उद्घाटन भी आने वाले कुछ ही दिनों में हो जाएगा। अयोध्या में भी एयरपोर्ट बनाने के लिए जो कार्य करना है, जमीन लैंड एक्विजिशन, वो भी जोरों से हो रही है। और जेवर एयरपोर्ट को अगर मेंशन किया जाए तो मैं समझता हूं कि वो एक ऐसा बड़ा ट्रांजिट हब बनेगा कि उत्तर प्रदेश की ही अर्बन कनेक्टिविटी नहीं पर देश भर की अर्बन कनेक्टिविटी और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी में एक बहुत बूस्ट मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ ही 1-2 वर्ष में लखनऊ और बाकी उत्तर प्रदेश के शहरों में हवाई अड्डे पे काम करने के लिए 2000 करोड़ की लागत की है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मार्च 2017 के बाद उत्तर प्रदेश यह प्रदर्शित करने के में उदाहरण रहा है कि राज्य सरकार अर्बन मिशंस को कैसे चला सकती है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि अगले 25 वर्षों में आत्मनिर्भर भारत के आपके विजन पर स्थापित हमारे भारतीय शहर और भी अधिक मजबूती से विकसित होते रहेंगे और एडवांस टेक्नोलॉजीज जो इस एग्जीबिशन और एक्सपो में डिस्प्ले की गई हैं एवं इंक्लूसिव डेवलपमेंट में पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय श्री राजनाथ सिंह, आदरणीय रक्षा मंत्री भारत सरकार से उनके उद्बोधन हेतु अनुरोध करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन जी पटेल और हमारे उत्तर प्रदेश के कर्मठ क्रियाशील माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, भारत सरकार के शहरी विकास मंत्री हमारे मित्र श्री हरदीप सिंह जी पुरी और राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वय श्री केशव जी मौर्य, डॉक्टर दिनेश जी शर्मा, राज्य मंत्री श्री महेश जी गुप्ता और इस सभागार में मौजूद अन्य राज्यों के सभी आए शहरी विकास मंत्रीगण, देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले तो मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारत के विकास के पुजारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनका मैं स्वागत करता हूं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि बिजी शेड्यूल होने के बावजूद वह समय निकालकर उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की है।
देश के अन्य राज्यों से आए सभी शहरी विकास मंत्रियों का भी और साथ ही साथ अपने शहरी विकास मंत्री श्रीमान हरदीप सिंह जी पुरी का भी मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुरू हो रहा यह 3 दिवसीय अर्बन कॉन्क्लेव एक तरफ अर्बन डेवलपमेंट की अब तक की उपलब्धियों को जनता के सामने ला रहा है, तो दूसरी ओर अर्बन डेवलपमेंट के फ्यूचर रोड मैप का भी यह माध्यम बनने जा रहा है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं मानता हूं कि लखनऊ में इस अर्बन कॉन्क्लेव का आयोजन इस शहर के साथ साथ भारत के सभी राइजिंग एंड अपकमिंग सिटीज की एक नई तस्वीर बनाने में भी सहायक सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री जी ने न्यू इंडिया का एक सपना देखा है और उसे मूर्त रूप देने के लिए दिन रात अथक परिश्रम करते हुए वे मिशन मोड में इस समय काम कर रहे हैं और उनका यह स्वप्न मित्रों साकार होते हुए हिंदुस्तान की जनता देख रही है। और जब स्वयं प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं तो यह बात और अधिक मायने रखती है, क्योंकि अर्बन प्लानिंग का जो विजन और मिशन उनके पास है, उस आधार पर शहरी क्षेत्रों का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट यानी समग्र विकास हो रहा है। मुझे याद है कि किस तरह उन्होंने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए अर्बन प्लानिंग पर बहुत अधिक फोकस किया था। भूकंप से तबाह भुज और प्लेग से पीड़ित सूरत शहर की सूरत बदलने में उनकी जैसी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, आज पूरे गुजरात में ही नहीं सारे देश में उसकी सराहना आज भी होती है। साथियों, भारत की नगरीय परंपरा अत्यंत प्राचीन है। हमारे देश के लिए अर्बनाइजेशन कोई यह नई बात नहीं है। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के शहर आज से 4000 वर्ष पहले पूरे विश्व के अग्रणी अर्बन सेंटर माने जाते थे। मौर्यकालीन पाटलिपुत्र हो या गुप्तकालीन उज्जैन हो, भारत की सतत जीवंत रही नगरीय विरासत को यह परिलक्षित करते हैं। उत्तर प्रदेश में सम्राट हर्षवर्धन का कन्नौज और इटर्नल सिटी ऑफ ईस्ट कही जाने वाली भगवान शिव की नगरी काशी हमें अपने अर्बन ट्रेडिशन की याद दिलाते हैं। यह सच है कि कालांतर में अर्बनाइजेशन कुछ कम हो गया था। साथियों, आज हमारा देश पुनः तेजी से अर्बनाइजेशन की ओर बढ़ रहा है और इस क्रम में हमारा देश एक और डाटा ड्रिवन एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड स्मार्ट सिटीज की परिकल्पना भी कर रहा है। दूसरी ओर हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन और कंजेशन के चैलेंजेस को एड्रेस भी कर रहा है। वहीं तीसरी ओर हमारे यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर उनका भविष्य भी संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। केंद्र में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार आने के साथ ही देश के शहरी विकास की गति लगातार आगे बढ़ती जा रही है। साथियों, नेशनल मिशन ऑफ पिलग्रिमेज रीजनरेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव जिसे प्रसाद कहते हैं, चाहे वह हो या अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन से अमृत कहकर पुकारते हैं वह हो, या हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च्ड स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2 हो या अमृत 2 हो, यह सभी अभियान हमारे नए भारत, स्वच्छ भारत और आत्मनिर्भर भारत के प्रति सरकार के उद्देश्यों को और साथ ही साथ सरकार के कमिटमेंट को यह दर्शाते हैं। साथियों, नीट एंड क्लीन और वाटर सिक्योर्ड सिटीज, सभी के लिए आवासीय सुविधाओं वाली सिटीज, न्यू कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी वाली सिटीज, इसके साथ साथ सस्टेनेबल मोबिलिटी और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी प्रदान करने वाली सिटीज का डेवलपमेंट हमारी सरकार का यह प्रमुख उद्देश्य है। हमारे आने वाले समय की यह सिटीज ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और सोशल इंक्लूजन, इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देते हुए हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ावा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। साथियों, न्यू अर्बन इंडिया पर केंद्रित कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो की शुरुआत जिस नगर में हो रही है यानी लखनऊ, यह लखनऊ दरियादिली और बेमिसाल तहजीब का शहर सारे हिंदुस्तान में माना जाता है। आज नए भारत में वेल डेवलप्ड लैंडस्केप की दिशा में तेजी के साथ यह लखनऊ भी बढ़ रहा है। आज से शुरू हो रहे कॉन्क्लेव में अर्बन डेवलपमेंट के नए नए आयाम हमारे सामने आएंगे। पूरे देश में ट्रांसफॉर्मेशन में अपना योगदान देंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को भारत यह निर्माण करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इससे अधिक
कुछ नए कहते हुए हमारे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री पदार्पण हुआ है, इसके प्रति मैं आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। पिछले 4.5 वर्षों में प्रदेश के विकास की गति बहुत तीव्र हुई है, जिसे मैं एक पंक्ति में पेश कर रहा हूं। आसमां दर आसमां चढ़ता गया, कहकशां दर कहकशां बढ़ता गया। और इस गति के सूत्रधार प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अब मैं निवेदन करूंगा कि वे अपने भावपूर्ण उद्बोधन देने का कष्ट करें। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में बदलते नगरीय प्रवेश, न्यू अर्बन इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप के 3 दिवसीय कार्यशाला कार्यक्रम के अवसर पर पूरे देश को अपना मार्गदर्शन देने के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास व पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी, माननीय भारी उद्योग मंत्री भारत सरकार डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, भारत सरकार के राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, नगर विकास के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, राज्य मंत्री महेश चंद गुप्ता जी, आज के इस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो में उपस्थित देश के लगभग 1 दर्जन से अधिक नगर विकास के माननीय मंत्रीगण, प्रदेश सरकार के मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण और उपस्थित महानुभाव, मैं प्रदेश की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इस 3 दिवसीय कार्यशाला के शुभारंभ के अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्यशाला के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को चुना है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश के लिए अर्बनाइजेशन कितना महत्वपूर्ण है, यह विगत 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में जो तमाम प्रकार की योजनाओं ने शहरी परिवेश को बदलने और प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने में जो सफलता प्राप्त की है, आज यहां पर उसके कुछ उदाहरण प्रदर्शित प्रदर्शनी के माध्यम से भी देखने को और समझने को प्राप्त हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी उन उपलब्धियों के साथ देश के सामने और देश के अंदर नई तकनीक,
और अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो कुछ नया देखने को मिल रहा है, यह सब उत्तर प्रदेश वासियों को और उत्तर प्रदेश के नगर निकायों को भी देखने को प्राप्त होगा। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं स्वागत करता हूं माननीय रक्षा मंत्री जी का, जो इसी लखनऊ के माननीय सांसद भी हैं। इस 3 दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन कार्यक्रम में आज उनका यहां पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। मैं स्वागत करता हूं केंद्रीय आवासन और शहरी विकास के मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का, जो निरंतर प्रदेश के विकास के लिए अपना सहयोग पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मैं केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी का, श्री कौशल किशोर जी का भी इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं। देश के लगभग 1 दर्जन से अधिक राज्यों के नगर विकास के मंत्रीगण भी इस अवसर पर इस 3 दिवसीय कार्यशाला में यहां पर उपस्थित हुए हैं। उन सब का भी मैं प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे इस अवसर पर बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि उत्तर प्रदेश ने विगत 4.5 वर्ष के दौरान अर्बनाइजेशन में कुछ नई उपलब्धियां हासिल की, और खासतौर पर एक लंबे समय से जो मांग हो रही थी कि 25,000 की आबादी की जो बड़ी ग्राम पंचायतें हैं, इनको नगर निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त हो, शहरी क्षेत्र के, नगरीय क्षेत्र के दायरे को विस्तार दिया जाए। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 654 नगर निकाय थे। आज इनकी संख्या बढ़कर के 734 हुई है, और इन 734 नगर निकाय के माध्यम से प्रदेश की एक बड़ी आबादी को हम लोग बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन इस देश के अंदर न केवल नारी गरिमा के लिए, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन में स्वस्थ भारत की परिकल्पना को साकार करने में भी मील का पत्थर साबित हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की थी, और उस मिशन में सबसे बड़ी बाधा के रूप में उत्तर प्रदेश को देखा जाता था। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 2,61,00,000 से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण हुआ, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि नगरीय क्षेत्र इस दिशा में उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे 652 जो नगर निकाय हैं, ये पहले ही ODF हो गए थे, जिनमें से 595 ODF प्लस के लक्ष्य को भी प्राप्त कर चुके हैं, और 30 नगर निकाय ODF प्लस प्लस के लक्ष्य को प्राप्त करने में जिन्हें सफलता प्राप्त हुई है। आजादी के बाद एक सपना था आवास का, हर गरीब के पास अपना आवास हो, आवास के नाम पर टोकन मनी नहीं, बल्कि उसको पूर्ण आवास प्राप्त हो। यह सपना आजादी के बाद 2014 में साकार होता हुआ दिखाई दिया, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अब तक 42 लाख से अधिक परिवारों को एक आवास उपलब्ध करवाया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर शहरी क्षेत्र में हम देखेंगे तो 17 लाख से अधिक लोगों को यह आवास हम उपलब्ध करवा चुके हैं, जिनमें 9 लाख आवास बनकर के तैयार हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज 75,000 आवासों में गृह प्रवेश का कार्यक्रम भी कुछ ही देर में प्रारंभ होगा। हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को एक नई दिशा देने वाली लाइट हाउस परियोजना
कि जो 6 परियोजनाएं देश के अंदर प्रारंभ हुई हैं, उनमें से एक प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। और जिस तेजी के साथ ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ, उसमें से ज्यादातर आवास आवंटित भी हो चुके हैं। और आपके द्वारा जैसे उद्घाटन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो उसमें बहुत सारे लोगों को उस आवास में रहने की सुविधा प्राप्त होगी। नई तकनीक के साथ कम समय में और सस्ते आवास उपलब्ध करवाने की परियोजना उत्तर प्रदेश के अंदर आज साकार होते हुए दिखाई दे रही है। महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अमृत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 60 नगर निकाय के अंदर 11,421 करोड़ रुपए की लागत की पेयजल की, सीवरेज की, ग्रीन बेल्ट को डेवलप करने की और पार्क के निर्माण की परियोजनाएं अब तक पूरी हो चुकी हैं। एक बड़ी आबादी को इन सभी बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने इन सभी योजनाओं के माध्यम से हमें सफलता प्राप्त हुई। तो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों को, जिसमें 10 आपके अनुकंपा से उत्तर प्रदेश के शहर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चयन हुए थे, और 7 जो नगर निगम बचे थे, इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्वर्जेंस के माध्यम से स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने का निर्णय लिया। और अभी 17 के 17 नगर निगमों में स्मार्ट सिटी मिशन का एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महोदय, पूरे देश, पूरी दुनिया ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान आपके नेतृत्व, आपके मार्गदर्शन और आपके सानिध्य को बहुत नजदीक से महसूस किया है। कोरोना प्रबंधन में WHO और दुनिया की उन तमाम संस्थाओं ने आपके नेतृत्व की और आपके मार्गदर्शन की भूरी भूरी प्रशंसा की है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है जब उत्तर प्रदेश में आज इस कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए आपका मूल्य समय प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश 11 करोड़ डोज उत्तर प्रदेश के नागरिकों को कोविड वैक्सीन के अब तक देने में सफलता प्राप्त हुई है। हम लगभग 8 करोड़ लोगों के कोविड टेस्ट भी अब तक संपन्न कर चुके हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आत्मनिर्भर भारत के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए PM स्वनिधि योजना, जो स्ट्रीट वेंडर के लिए आजादी के बाद पहली योजना प्रारंभ हुई थी, स्ट्रीट वेंडर के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक 7 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर को हम लोगों ने बैंकों से लोन उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है। और हमारा प्रयास है कि बहुत शीघ्र जो बचे हुए लगभग 1.5 लाख अन्य स्ट्रीट वेंडर हैं, उनको भी हम इस सुविधा से आच्छादित करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। महोदय, आपका हमेशा से इस बात पर जोर रहा है कि शहरी क्षेत्र में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बेहतर होना चाहिए, और इसके लिए आज आप पहले से उत्तर प्रदेश के अंदर आपके मार्गदर्शन में 40 इलेक्ट्रिक बसेस पहले से संचालित हैं, और आज आपके कर कमलों से 75 ऐसी बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस का संचालन आपके कर कमलों से प्रारंभ होने जा रहा है। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के 14 नगर निकायों में 700 बसेस के संचालन की कार्रवाई भी हम लोगों की प्रक्रिया के अधीन है। उसको हम बहुत शीघ्र प्रदेश के अंदर, आज से जो प्रक्रिया आपके कर कमलों से प्रारंभ होगा, उसको बहुत शीघ्र यहां पर लागू करेंगे। साथ ही साथ मेट्रो के लिए, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक बेहतरीन माध्यम है, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का एक भी नगर निकाय मेट्रो से नहीं जुड़ा हुआ था। आज उत्तर प्रदेश के 4 नगर निगम लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है। कानपुर में नवंबर के अंत तक मेट्रो का संचालन हो जाएगा। आगरा में मेट्रो का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी रैपिड रेल दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, इस पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। प्रदेश के अंदर छोटे नगर निकायों के बारे में भी उन्हें बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित किया जा सके, इसके लिए राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर निकाय योजना पहले से संचालित की है, और वे सभी नगर निकाय इसके माध्यम से संचालित हैं। नगरीय क्षेत्रों में अल्प विकसित और मलिन बस्तियों में आधारभूत संरचनाओं के लिए भी प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना प्रदेश के अंदर संचालित हो रही है, जो उन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए अपना कार्य कर रही है।
महोदय, आपके मार्गदर्शन में प्रयागराज कुंभ को देश ने और दुनिया ने देखा है। कुंभ स्वच्छता का, सुरक्षा का और सुव्यवस्था का एक मानक प्रस्तुत कर सके। आपका जो मार्गदर्शन और नेतृत्व प्राप्त हुआ था, उस समय प्रयागराज कुंभ ने उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य किया था और प्रयागराज कुंभ ने कुंभ को एक नई दिशा देने का कार्य किया था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रयागराज कुंभ की जो नोडल विभाग था हमारा, वह नगर विकास विभाग ही था, जिसने प्रयागराज कुंभ को पहली बार स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया था। क्योंकि कुंभ के बारे में इस बात की चिंता थी कि ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे होगा, सुरक्षा की व्यवस्था कैसे होगी। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रयागराज के अंदर जिस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन आपने किया था, उस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने केवल प्रयागराज कुंभ में ट्रैफिक की व्यवस्था के संचालन में अपना योगदान दिया था, बल्कि प्रयागराज कुंभ में आने वाले 24 करोड़ श्रद्धालुओं को सुरक्षा उपलब्ध करवाने में भी वहां की व्यवस्था ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। और वह कार्यक्रम इस अवसर पर प्रारंभ हुआ। हम आभारी हैं आपके कि आपने 1 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन शहरी के द्वितीय चरण के कार्यक्रम का और अमृत के द्वितीय चरण के कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। आपने लक्ष्य रखा है कि नगरीय क्षेत्र को पूरी तरह कचरे से मुक्त रखा जाए। शहरों को प्राप्त होने वाला जो जल है उसको सुरक्षित रखने की जो आपका संकल्प है। सीवरेज का गंदा पानी किसी भी नदी में न गिरे, आपका जो संकल्प है, इस संकल्प के साथ प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ उसे एक मंत्र मान करके आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। हमें पूरा विश्वास है कि 3 दिवसीय कार्यशाला आपके मार्गदर्शन में सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त होने के साथ साथ एक दूसरे राज्य में जहां कहीं भी कुछ अच्छा हो रहा है उसको हम अंगीकार करने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से इस पूरे कॉन्फ्रेंस के लिए की सफलता के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राज्यपाल महोदय का, माननीय केंद्रीय मंत्रियों का, अन्य सभी आगत अतिथियों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में देश में अग्रणी रहा है। कार्यक्रम के अगले चरण में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे उत्तर प्रदेश के विभिन्न 75 जिलों के प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 75,000 लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से चाबी का हस्तांतरण करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी।
धन्यवाद। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों से संवाद के लिए आदरपूर्वक अनुरोध करता हूं। सर्वप्रथम श्रीमती विमलेश, पत्नी श्री कुलदीप, जनपद आगरा, आप आमंत्रित हैं। आगरा। नमस्ते। राधे राधे। नमस्ते जी, सुनाई दे रहा है? हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है। हाँ, राधे राधे। राधे राधे। विमलेश जी, ये जो पीछे दिख रहा है वही आपका मकान है या आप कहीं और बैठे हैं? सुनाई दे रहा है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, चलिए, आपकी बात मैंने मान ली। अब मेरे हाथ में माइक आ गया है, अब आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। अच्छा विमलेश जी, बताइए पहले कहाँ रहती थी आप और अब मकान मिल गया, कैसा मकान मिला है? पहले भी हम यहीं रहते थे और पहले हमारा कच्चा और टूटा पुराना मकान था और अब हमारा पक्का और अच्छा बन गया है, इसलिए अब भी हम यहीं रहते हैं। वाह, तो इस बार पक्के मकान में दीपावली होगी? हाँ सर। अच्छा, आपको भारत सरकार की और कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है? हाँ सर, हमें जनधन योजना भी मिली है और सुनिधि घाटा लोन भी मिला है और राशन कार्ड भी है और पानी, बिजली और सिलेंडर भी है हमारे पास। अच्छा तो आपका परिवार करता क्या है? रोजी रोटी के लिए क्या काम करते हैं? हम सर माला झोली का काम करते हैं। अच्छा, बड़ा। माला झोली करते हैं। तो लोगों को आप आध्यात्मिक रास्ते पर ले जाते हैं? हाँ सर। अच्छा, इस एक काम में कितने सालों से जुड़े? क्योंकि ये बड़ा यूनिक लग रहा है मुझे कि कोई एक ही प्रकार का काम। यही सर, हम 2 साल से हम ये काम करते हैं। हाँ, तो कौन थोक में लोग ले जाते हैं कि ऐसे ही बाजार में छोटा छोटा? नहीं सर, हम मंदिरों के बाहर छोटी दुकान लगाते हैं, जैसे राबली है, मलका मसूरा है और मथुरा में भी लगाते हैं। अच्छा, तो कपड़ा बाहर से लाते हैं, कलर किया हुआ कपड़ा लाते हैं? नहीं सर, हम सफेद कपड़ा लाते हैं, घर पे ही लाके रंगते हैं और इसको छाप के बनाते हैं। अरे वाह, यानी सब चीजें आप अकेले करते हैं घर में? नहीं, हम सब मिलके करते हैं। मुझे जानकर के बड़ी खुशी हुई कि आपने पूरी तरह एक प्रकार से मेरी एक जो कल्पना है 5F, फार्म टू फाइबर टू फैब्रिक टू फैशन टू फॉरेन, आपने भी कपड़ा लिया, कलर के लिया, काट छाट की, उस पर छपाई की और बहुत उपयोगी चीज बना करके आप बेच रही हो। अच्छा, नए घर में जाने के कारण जीवन में क्या बदलाव आ रहा है? अब तो नए घर में गए तो रिश्तेदार भी बहुत आना शुरू हो गए होंगे। हाँ, पहले हमारा टूटा मकान था तो रिश्तेदार भी आते थे तो थोड़ी शर्म महसूस होती थी और अब हमारा पक्का मकान बन गया है तो इसलिए अब हमें बहुत अच्छा लगता है और रिश्तेदार भी बहुत आते हैं। तो फिर आपको खर्चा भी बढ़ गया होगा? अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर तो अखबार में छपेगा कि मोदी जी ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, मकान दे दिया, मेहमान बढ़ गए, खर्चा बढ़ गया। गरीब बेचारा खर्चा कहां से निकालेगा? सब लोग यही कहेंगे। अच्छा, बच्चे क्या पढ़ते हैं? हाँ सर, बच्चे तीनों पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं? क्या क्या किस क्लास में पढ़ते हैं? बड़ी लड़की 5वीं क्लास में पढ़ती है, छोटी लड़की 3री क्लास में पढ़ती है और छोटा लड़का है वो LKG में पढ़ता है। सबको पढ़ाओगे आगे? हाँ सर। पक्का पढ़ाओगे? हाँ सर, जितना होगा। देखिए, जैसे आपको गैस का चूल्हा मिला है, बिजली मिली है, आपको ये मकान मिला है, वैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए भी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं।
आप जरूर इस योजनाओं का लाभ लेना और बेटी को तो खास पढ़ाना। यस सर। ऐसा मत करना कि बेटी को भी ये पूजा की झोली बनाने में लगा दें आप। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। अब इस बार आपका दशहरा, आपकी दिवाली, आपकी छठ, ये पक्के और नए घर में बनेगी। बहुत खुशियों का पार नहीं होगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मेरी तरफ से मोदी जी को और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं श्रीमती राम जानकी पाल, पत्नी श्री लालजी पाल, जनपद कानपुर को माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। कानपुर। नमस्कार सर। नमस्ते राम जानकी जी। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। तो आपका मकान कब बन गया? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए और लोकार्पण आज हो रहा है। जी हाँ। चलिए, मुझे मौका मिल गया आपके साथ बात करने का। आप काम क्या करते हैं? आपका परिवार क्या काम करता है? दूध का काम करते हैं हम लोग। यानी दूध घर घर पहुंचाते हैं? जी। तो ये जो इस प्रकार से जो सेवाएं देते हैं, जी, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स जिसको कहते हैं, जो घर में दूध पहुंचाते हैं, सब्जी पहुंचाते हैं, बाकी कब की सेवाएं करते हैं, उनके लिए एक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है। क्या आपको उसका लाभ मिला है कोई? हाँ प्रधानमंत्री जी। मिला है? जी। क्या हुआ है मुझे जरा बताइए। हमको प्रधान स्वनिधि से हमको 10,000 का लोन मिला है। हाँ, फिर? वो उससे हमने अपने दूध के व्यापार में लगाया है। नहीं तो 10,000 रुपए का तो मेरा आग्रह रहता है कि मोबाइल फोन से डिजिटली लोगों से लेन देन कीजिए। तो वो आप करते हैं? जी करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा हो पा रहा है। 2-4 लोगों का हो रहा है सर। देखिए, माताएं बहनें कितना सच बोल देती हैं। आपने सच बोल दिया। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज है कि थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन ज्यादा करने का प्रयास करोगे आप लोग? हाँ सर। अच्छा, दूध कहाँ से लाते हैं आप लोग? गांव से लाते हैं प्रधानमंत्री जी। तो दूध वालों को पैसे रोजाना देना पड़ता है कि हफ्ते 10 दिन के बाद देते हैं? रोजाना देना पड़ता है। रोजाना देना पड़ता है। और फिर आप शहर में ला करके उसको बेचते हैं? हाँ प्रधानमंत्री। अच्छा, बच्चों की पढ़ाई होती है? हाँ। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। कानपुर से जिन जिन लोगों को आवास मिला है उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। 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 अब मैं श्रीमती बबीता, पत्नी श्री हरप्रसाद, जनपद ललितपुर को माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। ललितपुर। नमस्ते जी। नमस्ते सर। नमस्ते। तो बबीता जी बताइए, आप क्या करते हैं? आपका परिवार क्या करता है? और मकान तैयार हो गया आपका? सर, हम तो घर पे ही रहते हैं सर। हमारे पति करते हैं काम। अच्छा, आप कुछ नहीं करते? हाँ, हम तो घर पे ही रहते हैं। अच्छा, बच्चों को देखते हैं। ये घर से मैं देर से आते हो तो आप डांटती होगी। जी सर। हाँ, ये बबीता जी, आपकी पढ़ाई कितनी हुई? हम 5 तक पढ़े सर। अच्छा, बच्चों को पढ़ाते हैं आप? हाँ, पढ़ा रहे सर। अच्छा, आपका परिवार का कारोबार क्या है? आपके पतिदेव क्या करते हैं? बकरी के पालन करते नहीं। हाँ। सर, जो बकरी पालते हैं उधर मजदूरी करते हैं सर। अच्छा, और हाँ। पहले कहाँ रहते थे? हम यहीं पे रहते थे। अच्छा, फिर मकान पक्का बनाया? पहले कच्चा मकान हाँ, था? फिर पक्का। हाँ, पहले कच्चा था। परेशान होते थे खूब भाई, पानी चुगत था, खाना नहीं बना पाते थे, कीड़ा मकोड़े आते थे। अब पक्का मकान बन गया।
सरकार की तरफ अच्छा से लग कितना रहा। पैसा मिला आपको? 2.5 लाख मिला सर। अच्छा, सीधा सीधा आपके बैंक के खाते में आ गया था? हाँ। किसी को बीच में कुछ देना नहीं पड़ा ना? नहीं जी सर। पक्का? पक्का। वाह। देखिए, ये जनधन अकाउंट हमने खोले और जनधन अकाउंट से हमने जी सर। सीधा पैसा हितग्राही को पहुंचा दिया, जो लाभार्थी है उनको पहुंचा दिया। और इसका फायदा जी सर। गरीब को बहुत होता है। टेक्नोलॉजी जी सर। गरीब की बहुत काम करता है। आपको ये जब ये बकरी पालन करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो आपको ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का कोई लाभ मिला है क्या? नहीं साहब, कुछ नहीं मिला सर। अच्छा, देखिए, आप इसका फायदा उठाइए। जी सर। आप बैंक वालों से मिलिए, उनको हाँ। कहिए कि प्रधानमंत्री जी सर। स्वनिधि योजना है और हमारा यहाँ मकान है, तो हम चाहते हैं इससे जुड़ना, तो वो आपको 10,000 रुपया देंगे। जी सर। और 10,000 रुपया से आप अपना कारोबार आगे बढ़ा सकते हैं। और वो जी भी सर। अगर आप डिजिटल करते हैं तो फिर उसे देख करके वो 20,000 करेंगे। फिर अगर सर। आपको कुछ और अच्छा किया तो फिर आगे चल के 50,000 देंगे। जी सर। अगर आपका कारोबार बराबर चला, बैंक से लेन देन बराबर चला, तो आपको ये जो बाहर से ब्याज, जो ज्यादा पैसे देकर के ब्याज लेकर के आना पड़ता है, वो सब बच जाएगा। तो जी ये सर। ऐसी योजना है, अगर आप फायदा उठाए तो जी सर। उठाएंगे। उठाएंगे सर। उठाएंगे सर। अच्छा, उज्ज्वला योजना का लाभ मिलता है गैस का चूल्हे का? हाँ है जी सर। तो गैस से पकाते हैं आप? हाँ, वो खाना। अच्छा, घर में खास चीज क्या पकाते हैं? आलू की सब्जी बनाते हैं सर। हाँ। हाँ। अच्छा, रोज आलू खाते हैं? दाल बना लेते हैं, कुछ ऐसे बना लेते हैं सर। नहीं नहीं, आपके बच्चे बड़े हैं तो कुछ और भी मांगते होंगे, वो सब हाँ, बनाते दाल होंगे। माल वगैरह। आप बताइए, मैं नहीं आऊंगा खाने के लिए, आप चिंता मत कीजिए। आ जाना सर, हमें तो और अच्छा लगेगा। खिलाएंगे? हाँ, खिलाएंगे जी सर। चलिए, मैं योगी जी को बता के रखता हूँ कि मुझे भी कभी मौका दे दे। एक सर बात करना आपसे। क्या क्या बात करेंगे? मेडिकल कॉलेज बन गया ललितपुर में। हाँ। और एयरपोर्ट बन गया ललितपुर में। हाँ। बन रहा। तो आपको ये सारा पता रहता है? हाँ। अरे वाह, अब तो बहुत लीडर लगती है वहां पर। अच्छा लग रहा, बन रहा सो। चलिए, आप आशीर्वाद दीजिए, माताओं बहनों के आशीर्वाद मिले, ताकि मैं बहुत ज्यादा काम कर सकूं आप सब गरीबों जी का। जी सर। आप धन्यवाद। सब गरीबों का भला कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार जी। धन्यवाद। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की 10 स्मार्ट सिटीज की 75 सक्सेस स्टोरीज की कॉफी टेबल बुक एडवांटेज उत्तर प्रदेश स्मार्ट सिटीजन स्मार्ट सिटीज स्मार्ट यूपी के डिजिटल विमोचन हेतु आग्रह करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी। शहरों के विकास की गति ही देश की प्रगति की दिशा तय करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्किल, स्पीड, स्केल की अवधारणा पर देश की प्रगति को नई दिशा देने के लिए शुरू किया स्मार्ट सिटी मिशन। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश के 7 शहरों का स्टेट स्मार्ट सिटी के रूप में किया जा रहा है विकास। आज उत्तर प्रदेश की 10 स्मार्ट सिटीज में 75 सक्सेस स्टोरीज की कॉफी टेबल बुक का विमोचन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। इन 75 सक्सेस स्टोरीज को 6 सेगमेंट्स में किया गया है प्रदर्शित, जिनमें
ease of living, new age transport and mobility, transforming infrastructure and utility, water, health and sanitation, e-governance and citizen services. कल्चर एवं लाइफस्टाइल के माध्यम से शहरों को स्मार्ट तरीके से विकसित किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहरों का विकास होने से आम जन का जीवन आसान हुआ है और उत्तर प्रदेश देश के लिए एक नए ग्रोथ इंजन के रूप में शीर्ष राज्यों की श्रेणी में पहले पायदान पर आ चुका है। स्मार्ट शहरों से बन रहा है स्मार्ट उत्तर प्रदेश। अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चेयर का डिजिटल शुभारंभ करने का कष्ट करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। अटल जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में बहुत सी चीजें कही जा सकती हैं और एक भी बात दूसरे से कम नहीं हो सकती। लोगों ने उन्हें उत्तम सांसद, संवेदनशील लेखक, श्रेष्ठ वक्ता, लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में याद किया है और करते हैं। सुशासन यानी गुड गवर्नेंस को मुख्य धारा में लाने के लिए यह देश सदा अटल जी का आभारी रहेगा। स्वतंत्र भारत की राजनीति में श्री अटल बिहारी वाजपेयी का प्रमुख स्थान है। उनके व्यक्तित्व के कई आयाम थे। वो एक असाधारण राजनीतिज्ञ, वाक्पटु वक्ता, कुशल राजनयिक, शानदार प्रशासक, एक विपुल लेखक और कवि हृदय थे। उन्हें वर्ष 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। वो एक दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने भारत के भविष्य को देखते हुए देश को पोखरण द्वितीय के लिए परमाणु शक्ति घोषित करने का एक दृढ़ निर्णय लिया। उनकी मेगा परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर राजमार्गों के माध्यम से 4 महानगरों को जोड़ा गया और विभिन्न प्रदेशों के बीच सड़क यातायात को सुगम बनाया गया। इससे भारत के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन हुआ और विकास की वृहद प्रक्रिया शुरू हुई, जिससे आम आदमी लाभान्वित हुआ। उनके पास प्राचीन धर्म, संस्कृति और सभ्यता का एक बड़ा ज्ञान और समझ थी, जिसे उन्होंने अपनी कविता और साहित्य के माध्यम से व्यक्त किया। इस बहुआयामी प्रतिभा के कृतित्व पर अध्ययन करने के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी पीठ की स्थापना की जा रही है। इस पीठ के माध्यम से श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा विदेश मंत्री, विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री और साहित्यकार के रूप में उनके योगदान के ज्ञात और अज्ञात पहलुओं को सामने लाए जाने का प्रयास किया जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थापित ये पीठ शहर की एक उपलब्धि होगी, क्योंकि ये उनका निर्वाचन क्षेत्र था, जिसका उन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में प्रतिनिधित्व किया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पीठ के लिए वित्त पोषण करेगा। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से उत्तर प्रदेश के शहरी विकास पर लघु फिल्म उत्तर प्रदेश एमर्जिंग एज लैंड ऑफ अर्बन अपॉर्चुनिटीज के प्रदर्शन की अनुमति चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत के विकास के प्रति दिखाई हुई दिशा एक प्रेरणा का स्रोत है। तमाम राज्यों ने इससे प्रेरित होकर शहरी विकास की राह अपनाई है, परंतु बीते वर्षों में उत्तर प्रदेश इस सूची में काफी पिछड़ा रहा था। लेकिन वर्ष 2017 में
उत्तर प्रदेश राज्य की जिम्मेदारी संभालते ही माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री जी के 2014 के मिशन और विजन से प्रेरणा ली एवं उत्तर प्रदेश की तमाम चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखा। अच्छाई और अपने काम के प्रति सच्चाई को नींव बनाकर उन्होंने राज्य का संपूर्ण कायाकल्प किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक देश को एक नई दृष्टि दी है, उस दृष्टि के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी ने एक कर्मयोगी के रूप में इस अवसर को गति दी, जिसका असर आज उत्तर प्रदेश की तरक्की के रूप में देखा जा सकता है। यूपी में चल रहे ये हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आने वाले वर्षों में भारत की प्रगति का बड़ा आधार बनेंगे। जहां एक तरफ शहरों की संख्या बढ़ती चली गई, वहीं दूसरी तरफ हर शहर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ODF होता चला गया। जन कल्याण की बात की जाए तो जहां 2017 में सिर्फ 18,000 आवास सैंक्शन थे, वहीं आज 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में 17 लाख से ज्यादा मकान सैंक्शन हो चुके हैं, जिनमें से 9 लाख का कार्य खत्म कर जनता को सौंप दिए गए हैं। GHTC इंडिया के तहत लखनऊ में विश्व की श्रेष्ठ निराम तकनीकों के माध्यम से बन रहे लाइट हाउस प्रोजेक्ट का कार्य भी काफी तेजी से किया जा रहा है। PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत अब तक 7 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी विक्रेता को लाभ मिल चुका है। ये किसी भी प्रदेश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। साथ ही में DAY NULM स्कीम द्वारा महिला वर्ग का सशक्तिकरण करते हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी सक्रिय करवाए गए। उत्तर प्रदेश के 61 शहरों में 12,000 करोड़ रुपए जन विकास की जरूरतों के लिए निवेश किए गए हैं, जिनसे वाटर टैप कनेक्शंस, सीवेज कनेक्शंस, ग्रीन स्पेसेस आदि का निर्माण किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। साथ ही प्रदेश के 10 शहरों को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है। यही नहीं, इनमें से 8 शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सक्रिय है और बाकी 2 शहरों में जल्दी शुरू किए जाएंगे। पर्यावरण की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए 10 लाख LED लाइट्स की स्थापना की गई, जिससे बड़ी मात्रा में कार्बन फुटप्रिंट को घटाया जा सकेगा। जहां 2017 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में मात्र 15 किलोमीटर में मेट्रो चलती थी, वहीं आज गाजियाबाद के साथ साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ में 82 किलोमीटर की मेट्रो लाइन चल रही है। साथ ही देश की पहली RRTS दिल्ली मेरठ पर बहुत तेजी से कार्य चल रहा है, जिसके अंतर्गत 2022 में 17 किलोमीटर की लाइन का उद्घाटन कर दिया जाएगा। क्लीन गंगा मिशन के तहत वन सिटी वन ऑपरेटर के इनोवेशन से STPs को और भी प्रभावी और कार्यकुशल बनाया जा रहा है। मथुरा और वाराणसी जैसी पवित्र भूमि पे आ रहे लाखों पर्यटकों, तीर्थ यात्रियों एवं स्थानीय निवासियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन व मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में अपनी विराट संस्कृति और परंपरा को संजोकर प्राचीन और नवीनता के संतुलन को बनाए रखते हुए उत्तर प्रदेश आधुनिकता और विकास की ओर अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है। इन्हीं तमाम परिश्रमों का फल है कि उत्तर प्रदेश आज हर क्षेत्र में नए सुनहरे अवसरों को जन्म दे रहा है और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में उजागर हो रहा है। धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से स्मार्ट सिटी मिशन व अमृत मिशन की विभिन्न 75 परियोजनाओं के डिजिटल लोकार्पण व शिलान्यास का अनुरोध करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी। किस
किसी भी देश के जीडीपी को बढ़ाने के लिए शहर ग्रोथ इंजन होते हैं। नई तकनीक एवं अभिनव प्रयोग के माध्यम से सस्टेनेबल शहर बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की गई। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 10 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से प्रदेश के 7 शहरों को राज्य स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने तथा स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 10 शहरों में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के कारण उत्तर प्रदेश को इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 में प्रथम पुरस्कार मिला। इसी कड़ी में अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन एवं नए भारत के विजन को मूर्त रूप देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अमृत मिशन की परिकल्पना की गई। आज देश में आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। विकास की इसी श्रृंखला में प्रदेश के विभिन्न शहरों में 75 बड़े कार्यों, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एवं इंफ्रास्ट्रक्चर तथा अमृत मिशन के अंतर्गत पेयजल एवं सीवरेज सहित 4,437 करोड़ रुपए की लागत की कुल 75 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। इन विकास परियोजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है तथा गुड गवर्नेंस के माध्यम से पूरी दुनिया में अनूठी मिसाल पेश कर रहा है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, बदलता नगरीय परिवेश। धन्यवाद। एक बहुत बड़े कार्य की शुरुआत। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय की फेम 2 स्कीम के अंतर्गत 75 अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसेस को 60 शहरों के लिए डिजिटली फ्लैग ऑफ करने की अनुकंपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। एक ओर जहां तेजी से विकास हो रहा है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण को सहेजने की चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन वर्तमान में बड़ी चुनौती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का शहरों को स्मार्ट एवं इको फ्रेंडली बनाने का संकल्प उत्तर प्रदेश में पूरा हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा संकल्प पत्र में किए गए वादे को पूरा करते हुए आज मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट मॉडल के माध्यम से उत्तर प्रदेश में शहरी यातायात को सरल एवं सुगम बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों के संचालन हेतु अभिनव पहल की जा रही है तथा साथ ही साथ मेट्रो रेल एवं रैपिड रेल सेवाओं को भी बढ़ाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन में उत्तर प्रदेश में यातायात के नए युग की शुरुआत हो रही है। प्रदेश में भारत सरकार के भारी उद्यम विभाग के फेम 1 स्कीम के अंतर्गत पूर्व से 40 इलेक्ट्रिक बसें संचालित हो रही हैं तथा फेम 2 योजना में 700 इलेक्ट्रिक बसों में से 75 बसों के प्रदेश के 7 शहरों लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी, गोरखपुर व गाजियाबाद में संचालन का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज किया जा रहा है। ये इलेक्ट्रिक बसें प्रदेश वासियों को सुखद एवं अविस्मरणीय यात्रा कराएंगी। बेहतरीन पिकअप वाली सेमी लो फ्लोर बसें एक बार चार्जिंग पर 150 किलोमीटर तक चलती हैं, जिनके लिए चार्जिंग स्टेशन, स्मार्ट शेल्टर्स व स्मार्ट क्लीनिंग की व्यवस्था की गई है। सरल एवं पारदर्शी यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड तथा डिजिटल पेमेंट सिस्टम बनाया गया है। स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों का संचालन कर उत्तर प्रदेश दूसरे राज्यों के लिए विशेष उदाहरण पेश कर रहा है। स्मार्ट यूपी, ग्रीन यूपी की ओर बढ़ते कदम। अब मैं आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के विभिन्न